I think kudos to everyone, all 20 of us. I mean, I'd love to say that because इस बार Yeah. challenge भी double था, Yeah. मजा भी double था. Yeah. Journey was insane. We were looking at South Africa, the weather, the tasks, Yeah. the whole experience. I think it was just very different. I don't think यहाँ पे 10 ex roadies में से कोई भी एक ऐसा कि जो बोलेगा कि journey last time की तरह थी. बिल्कुल नहीं थी. Oh, आपसे मिलके इतना अच्छा लगता है क्यों ऐसा लगता है कि all the time you are super ready, you are super fit. Love the shoes also, sir. कमाल के जो ये जूता का शॉट लो यार. Wow, love it. सोनू सर कुछ ऐसे hi Anshul, how are you doing? Hi, Salil. Thanks so much for those kind words. You are a lot of people very busy taking pictures. By the way, that's a really cool entry. Are you a very avid biker as well? Yes, I enjoy motorcycling. One of those things I do to de-stress. Do you do this on every Sunday? Like, you have those long biking rides with the biking group? I have a 3-year-old daughter at home, so I don't do every Sunday now, Yeah. but I try and do whenever I can. I understand, sir. I've got a 4-year-old son and a 2-year-old daughter. Oh, so then No you're- Saturday, Sundays are out there. But when I mention MTV is always cutting edge and it's always innovative, it's risk taking. Yeah. It is that completely, So every time people talk about nayapan, they talk about new things. Roadies ko reinvent karna, बहुत बड़ी बात होती है. So, big task on your hand. How did you all do it? No, Salil, very well put. So, for all of you who don't know, actually MTV started beaming in India in 1996. So, we're actually a 26-year-old brand, right? Yep. And I think the reason we've stayed where we are in terms of, our pole position is because we've always reinvented ourselves. बट इसमें रिस्क भी होता है ना कई बार लोग सोचते हैं कि आजकल 15 मिनट जनरेशन है 15 सेकंड जनरेशन है हाँ जी। तो इसमें एक बड़ा रिस्क लेना मुनाफे में रहते हैं फायदेमंद रहता है हाउ डू यू ऑल कीप इट कि ठीक है चला विल गो विद इट विल सी हाउ इट गोस नहीं, to be very honest with you, Salil, I would love to say कि, risk है तो इश्क है, we should do what we have to. But the truth of the matter is, a lot of thought and lot of analysis went into what it is that we need to do. अब हुआ ये कि हम ना हर 2 साल के दौरान एक बड़ी सी यूथ स्टडी करते हैं 25,000 यंग लोगों के साथ हम बातचीत करते हैं उनसे मुलाकात करते हैं ऑफ कोर्स कोविड के दौरान हम ये कर नहीं पाए बट वी डिड दिस रिसर्च एंड द रिसर्च वाज वेरी क्लियर इट सेड जस्ट वन थिंग द वर्ल्ड हैज चेंज्ड नाउ यू वुड wonder why do you need to do research to know that but it helps sometimes and then we figured that this is the right time for MTV to reboot itself so we started in baby steps we started with sports broadcasting with La Liga NBA League One we then went on to actually launch Fully Faltu which is an interesting short form video offering. We then launched Fully Faltu NFTs that, thank God, have done phenomenally well. Our first drop was sold out in less than 48 hours. Wow. So we kept doing you all this. know NFTs right सब लोग जानते हैं NFT this is exactly what is going to make sure MTV even triples its profits very soon I hope so. And then we figured that if we really need to reboot, then we take India's longest running adventure reality show, not very far from its roots. The roots are about journey and adventure, but we dialed that up 10x. And honestly, Salil, I think it was from the heart that we wanted to make this. In our industry, I know ये अजीब चीज़ है कहना, मगर it's an industry where हर हफ्ते ratings आती हैं, कितने subs लिया आपने, कितने active users आए, कितने ticket बिकी and all of that, right? But very rarely do you make content that you see and you say कि कुछ भी होना, this is what we wanted to make. And I think credit to the full team at MTV. I have one of the best teams in the business. I'm not just saying it, I really mean it. no I agree with that your work culture is fantastic इसमें Yeah. कोई दो राय है ही नहीं And they've come up with Roadies the current season that's out there. And it's like when you want to do something from the heart, things just work out for you. So I know when we were visualizing this concept, the name that we wanted to helm it was Sonu Sood. And we reached out to him and we said, आपको ये show करना है. And then, it was a very interesting conversation because हम कुछ कहते थे and he would complete the sentence. So it was almost a matching of minds where we said, this has to happen. And then we said, let's scale it up. And despite all odds and all sorts of risks that we have taken, many that we'll probably discuss some other time, the show is there. It's a phenomenal show, made from the heart. Very, very grateful to, Pipip Media. They're our partners who've actually helped us create this show. And, it's also a politically incorrect thing to say, but we're in the business of art. Yeah. Now, in the business of art, you need patrons, right? Yeah. And very rarely do you get patrons who are patient with you and who say कि हमें आप पे भरोसा है, आप करो. And I think we're very grateful to all our sponsors, all of who you mentioned. Yes. And even the team at Infinix. I know Manoj and Aman are here. But thank you very much for having faith in us and for letting us do what we think needs to be done. So it's been a phenomenal journey. Lots and I of hope new everyone things loves as it. well.
आपने बड़े ऐसे you just put it on the side over there, Sonu Sood. Ladies and gentlemen, as we all know, we are going to meet him. A big round of applause for a man who's done so much in the last couple of years. हम लोग उनको इतना प्यार करने लग गए, मेरे ख्याल से फिल्मों से तो प्यार था ही, लेकिन और भी बड़ा प्यार करने लगे. सोनू सूद इसमें एक नया एडिशन है. But the other part, of course, also is South Africa. Yes. आपने पूरा ये शो विदेश में शूट किया और वो भी इस टाइम में. ये Yes. भी एक बहुत बड़ा रिस्क भी था. Again, hats off to the team, Salil. Yeah. You know, we thought of it, and trust me, it wasn't an easy experience, but the way they pulled it off was phenomenal. Right. And you know, for Sonu Sood, all I can say is there's no one better than a real world roadie to find and discover the next generation of roadies. And Big round of inspire applause, them. ladies and gentlemen. Yeah. I think ये तालियां बनती हैं इसके लिए. जो एपिटोमाइज करते हैं रोडी की स्पिरिट वो हैं एक्चुअली सोनू सूद साहब. So yeah, I hope everyone really likes the show. Like I said, सच्ची दिल से बनाया है. I hope you have a great time watching it. And if you could do this for me, please, there's one request that I have. I genuinely have a team of 140 people who are by far phenomenal, extremely passionate, young, driven. A huge round of applause for my team. Your round of applause worked a little bit more. I asked 3 times and you clapped so much. Maybe But- after the food. But I like this. There's a lovely AV that we want to play to you just to show you the roadie's journey जो आपके लिए हम दिखाना चाहेंगे. तो please just peel your eyes to the screen. All right, we're going to have them on either side and I'm going to walk with you guys. Okay, are we going to keep the bikes on or off? One sec. There we go. All right. Okay, so yeah, congratulations. Well done, everybody. It looked fantastic. The locations in South Africa, we'll come to you all a little later. But kaisa raha, yaar? I mean, this is what everybody wants to do. I used to go to parties earlier and people would say, I said, what do you do? I'm a roadie. सब ऐसे ही बोलते थे. तो यही तुम सबका भी सपना था ना, I'm a roadie बोलने के लिए. तो अब ये कर दिया. टास्क करने कितना मुश्किल, कितना easy. Let's have a परिचय first and then let's hear what you did in South Africa. Intro. Yeah, man, just one line Yeah, intro. so, परिचय. huh? Simple. हाँ, Your परिचय. my परिचय. Yes, your introduction. हाँ, तो hello guys, my name is Siddharth. You can call me Sid. यहाँ पे बहुत सारे लोग बोलते हैं सिद्धू, Sid, Sidi, and मनोज मेरा बाप का नाम है. Right. वो भी चलेगा, लेकिन हाँ, I'm a roadie. We're all roadies. Season 18. Yeah, okay, so we were like going one by one like that. Oh, little yeah, bit. yeah. It's all right. So, It's all right. We'll... And yeah, moving on. Okay, so let me just... Did you have like a tough time? मतलब normally roadies में देखते हैं tasks ना बड़े मुश्किल लगते हैं. इतने ही मुश्किल थे जितना सोचा था या नहीं? All right, hi, namaskar everyone. My name is Gaurav Alag, and I just want to say, Salil, you're right. बहुत लोगों के लिए ये सपना होता है. Right. And हम में से 10 लोग ऐसे थे जिन्होंने ये सपना 2 बार जिया है. Yes. Right, A lot so of you all are from the previous season as well. So Absolutely. congratulations everyone So for making it back in. No, I think kudos to everyone, all 20 of us. I mean, I'd love to say that because इस बार challenge भी double था, Yeah. मजा भी double था. Yeah. Journey was insane. We were looking at South Africa, the weather, the tasks, Yeah. the whole experience. I think it was just very different. I don't think यहाँ पे 10 ex roadies में से कोई भी एक ऐसा कि जो बोलेगा कि journey last time की तरह थी. बिल्कुल नहीं थी. I think well done. You read the entire press brief very well. बहुत बढ़िया काम किया. Absolutely. Well done. Now coming to this side as well. I do my homework well, Salil. You did a brilliant job. Big round of applause for everybody here also. And coming to the light ना बहुत shade में हो आप लोग. So anyone, we just a quick bit here and there. What's your name and how is it, man? क्या बोलती पब्लिक? फुल पावर था, मचाया है रोडीज के जर्नी पे. I think it was one of the most beautiful experience we all have had. Yeah. So my name is Tanish and I'm from Amchi, Mumbai. All right, Tanish, hold it there. You had a great experience. We'll come back to all of you all, but we got a man जिन्होंने आपके लिए experience और भी better बनाया. So we all know who we're talking about, right? Do we know who we're talking about? The real superstar of India. I've come to love him for much more in the last 2 years. I know everyone does too. So ladies and gentlemen, put your hands together for the one and only, the hero, the big boss man, Sonu Sood. कैसे हो सोनू sir? Mind blowing. Superb. I think a bigger round of applause, ladies and gentlemen, हो जाए. All our contestants तो हैं ही, sir. How are you, sir? Man, जबरदस्त, mind blowing. Oh, आपसे मिलके इतना अच्छा लगता है, क्यों ऐसा लगता है कि
All the time you are super ready, you are super fit. Love the shoes also, sir. कमाल के जो ये जूता का शॉट लो यार. Wow. Love it. सोनू सर, कुछ ऐसे स्वीट बच्चे आपके सामने, कुछ सख्त बच्चे आपके सामने, कुछ नटखट, कुछ शायद नॉट सो नटखट. कैसा रहा एक्सपीरियंस सर सबके साथ में? ये साउंड दे रहे दोस्त, आ रही है बात? थोड़ा और साउंड. या ओके. तो मैं यही कहना चाहूंगा, ये बच्चे नहीं है, हीरोज हैं बॉस. इन्होंने जो 45 डेज में किया है, आई थिंक दे इंस्पायर मी, दे विल इंस्पायर द होल नेशन. दे आर द रियल रॉक स्टार्स एंड वी आर सो प्राउड ऑफ यू. गॉड ब्लेस यू ऑल. थैंक यू सो मच. सोनू सर, ये टास्क्स वाले जो सिचुएशन होते हैं जी. डरा देते हैं लोगों को. जब मैं फेसबुक पर मीम्स भी देख रहा होता हूँ या फिर फेसबुक पर ये भी देख रहा हूँ तो कैसे करते हैं. आप जब इनसे करवा रहे थे, was the feeling similar to you also? यार ये तो बड़ा मुश्किल है. हर रोज हमें लगता था कि बड़ा मुश्किल है बहुत, लेकिन इन लोगों ने उसको आसान बना दिया. मैं आपको एक छोटा सा किस्सा बताता हूँ. एक जो पूरी दुनिया का सबसे हाईएस्ट ब्रिज है बंजी जंपिंग के लिए, 216 मीटर का, 216 मीटर्स का. और मुझे तो सिर्फ होस्ट करना था, मुझे कूदना नहीं था. मुझे तो होस्ट करना, हाँ यार अच्छा, वेरी गुड, अब रुकना नहीं, कूद जाओ, ये सब. तो सब लोग कूद रहे थे, बड़े थे. तो मैं क्या यार कूद जाऊँ क्या, मैं कूदूँ कि नहीं कूदूँ यार, काम तो नहीं है मेरा कूदना. पर आई थिंक इन लोगों ने मुझे इंस्पायर किया कि मैं क्या यार बॉस, मैं भी कूदता हूँ. और मैंने भी वहाँ से जंप लगाया. सो आई थिंक दैट मेक्स देम रोडीज, दैट मेक्स millions of people across the nation that they want to be part of these roadies. I think they are the real inspiration. सर हम सब ने तो बचपन से ही देखा है, क्योंकि जैसे कि अंशुल सर भी बता रहे थे, इट्स पार्ट ऑफ आवर चाइल्डहुड ऑल्सो. आप भी हमारी उम्र के ही हैं, आपने भी बचपन से देखे थे. उस समय आप देखते थे और कैसा लगता था. नाउ यू नो ऑल ऑफ देम आर नाउ पार्ट ऑफ योर नेट, आपके सेफ्टी नेट के अंदर थे. सो व्हेन दे फर्स्ट कॉल्ड यू एंड दे सेड चलो सोनू सर आपके साथ करना है हमें, पहले इंस्टेंटली स्क्रिप्ट की तरह यस, या फिर थोड़ा टाइम लगाया? नहीं बिल्कुल एकदम वी आर ऑल ऑन आवर टोस. मुझे भी एकदम रोडी टाइप की फीलिंग आ रही थी. पहले तो हम लोग टीवी पे देखते थे, इंस्पायर होते थे. और मुझे लगता है कि देश का हर बंदा चाहता है कि मैं रोडीज का हिस्सा बनूं, क्योंकि मुश्किलों से आपको गुजरना पड़ता है. कई बार सोने की सही जगह में नहीं मिलेगी, कई बार लंबा ट्रैवल करना पड़ेगा, कई बार खाने का कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन यू हैव टू सर्वाइव. और उस सर्वाइवल के अंदर आपको वो सब टास्क करने हैं जो बहुत ही मुश्किल हैं और बहुत एक्साइटिंग है. बट आई थिंक जब वो कर पाते हैं तो वो रोडीज होते हैं. और जो करना चाहते हैं वो अगले सीजन का इंतजार करते हैं कि बॉस कब मौका मिलेगा और कब मेरा नंबर आएगा. आपके साथ कोई भी डिस्कशन फिटनेस के बिना हो ही नहीं सकती सर. जी. आप ये जो टास्क और डिसिप्लिन की बात कर रहे हैं, मैं एक किस्सा सुनाना चाहूंगा. जब रेडियो में मैं शो कर रहा था और दबंग के बाद मैंने अगले दिन आई कॉल्ड सोनू सर सुबह 6 बजे. दबंग फ्राइडे को रिलीज हुआ, सुबह 6 बजे भी कॉल्ड सोनू सर एंड ही वाज इन द जिम. मैं कहा सर कल तो पिक्चर रिलीज हुई है. कहते हाँ बट नाउ आई एम इन द जिम, विल चैट इन सम टाइम आल्सो. आपका डिसिप्लिन इसके लिए वैसे तालियां हो जाए, बिकॉज दिस मैन इज ए प्रतीक ऑफ एग्जैक्टली हाउ यू शुड ऑलवेज बी. तो ऐसे कुछ ज्ञान दिया आपने कई बार इनको, बिकॉज बहुत जरूरी हो जाता है. लोग हार मान जाते हैं. समवन लाइक यू नेवर लेट्स गो. पिछले 2 साल में तो बहुत वेल डॉक्यूमेंटेड है हाउ यू नेवर लेट गो. व्हाट वाज एडवाइस दैट यू गिव देम कि कैसे हार नहीं माननी है? देखो ये सब लोग ज्ञानी है वैसे ही, मैं क्या ज्ञान दूंगा इन लोगों को. लेकिन मैंने एक चीज जरूर देखी विच आई थिंक द होल नेशन विल सी, कि जो बदलाव आता है एक्सपीरियंस से, हर रोज जो आप एक्सपीरियंस करते हैं, जो उससे चेंज आता है आपकी लाइफ में, वो बड़ा एक्सपीरियंस कमाल का होता है. और वो आप लोग महसूस करते हैं. आई एम श्योर सब लोगों ने वो देखा है खुद के अंदर. और मैंने इनके अंदर देखा, आई स्टिल रिमेंबर जो मैं फर्स्ट एपिसोड जब हम लोग शूट कर रहे थे रोडीज का, तो सब अलग अलग तरीके से रिएक्ट करते थे. उनका एक बोलने का तरीका था, रिएक्ट करने का, हर चीज़ अलग था. और जब आखिरी हमने पूरा सीजन खत्म किया, मुझे लगता है कि अलग लोग बनकर निकले. That's true. That always happens. Big round of applause for yourselves also. शुरुआत में ऐसे आते हैं जैसे boot camp होता है ना. You come in like think I'm going to take over the world, and then you realize halfway कि भाई the world is very large. इतना छोटा ही से हम लोग कर ले. But the toughest thing that you found about being a host also, sir. इनकी तकलीफों के बारे में तो बात करेंगे ही, but आपके लिए कुछ मुश्किल था? मुझे एलिमिनेशन वाले दिन बड़ा डर लगता था यार. इन लोगों को तो डर लगता था, लेकिन मुझे और इसलिए टेंशन आता था. मैं कि यार ये ना जाए यार, रोक लूँ मैं इनको यार. बड़ी कोशिश करता था मैं कि कुछ ऐसा फॉर्मेट बना दें यार, ये ना जाए. आई थिंक दैट्स व्हाट वाज अ डिफिकल्ट पार्ट. बट वो भी एक सच्चाई है. बोलते कि हमें ज़िंदगी में बहुत बार एलिमिनेशन मिलते हैं, हम लोग ज़िंदगी में बहुत कुछ करना चाहते हैं, और फिर कुछ ऐसी मुश्किल चीज़ें आती हैं कि हम लोग लाइफ की उस रेस से
थोड़े समय के लिए एलिमिनेट होते हैं और फिर हम लोग कोशिश करते हैं कि वापस जो जिंदगी है रोड पर लेकर आनी है। सबने देखा है, एज एक्टर्स हमने, आपने, सब लोगों ने एक्सपीरियंस किया है कि कई बार पटरी से गाड़ी उतरती है और हम लोग मेहनत करके वापस पटरी पर लेकर आते हैं। रोडीज भी वही है कि जब कई बार एलिमिनेट होते हैं तो आपको लगता है यार कुछ कमी रह गई है, बॉस वापस मेहनत करूँगा, और फिर वापस आप आते हो या फिर इंतजार करते हो कब आने हो। आई थिंक वो एक रोडीज सिर्फ एक शो नहीं है, एक जिंदगी का बहुत बड़ा लेसन है। True. एक तजुर्बा है कि आप देखते हैं कि बॉस किन मुश्किल तरीकों से हम लोग निकलते। जब हम लोग कॉलेज में थे हमने सब एक्सपीरियंस किया, और आज जब हम वो पूरा डॉक्यूमेंटेड देखते हैं और इतनी बड़ी लंबी जर्नी देखते हैं, मुझे आई रिमेंबर कि वी स्टार्टेड फ्रॉम पोर्ट एलिजाबेथ साउथ अफ्रीका के कोने से शुरू किया, केप टाउन तक हम लोग गए। पूरी जो जर्नी थी वो इतनी कमाल की थी कि मुझे फिल्में बहुत शूट की, आउटडोर्स भी बहुत किए, बट आई कैन वाउच कि रोडीज का जो एक्सपीरियंस था वो सबसे कमाल था। एंड ऑल थैंक्स टू दीस गाइस आल्सो। वाओ, गिव योरसेल्व्स अ राउंड ऑफ अप्लॉज। सोनू सर का इमोशनल साइड भी हम देखेंगे जब आएंगे वो एलिमिनेशंस पर, जब हम देखेंगे। लेकिन आई एम गिविंग यू ऑल अ चांस आल्सो। चलो हम तो आपसे सवाल करते हैं, बट वन क्वेश्चन दैट यू ऑल वुड लाइक टू आस्क सोनू सर, यू नो यू ऑल हैव मेट हिम ड्यूरिंग द एंटायर बिट। एक सवाल। यस गो अहेड। I would like to ask Sonu sir, who is your favorite contestant? वाह, सर ये मैं बताता हूँ मेरा फेवरेट कंटेस्टेंट जो हमारे डायरेक्टर अंकित थे वो है। हमारे डायरेक्टर मुझे बहुत जल्दी बुलाते थे, आजा बॉस रेडी है, कैमरा रोलिंग है, मैं बैठा हूँ आप भी आएगा। अभी अंकित किधर है, दिख रहा है कहीं पे? आई थिंक यहीं पे है हमारे डायरेक्टर साहब भी। हाय अंकित, क्या हाल है? सो वो है मेरा फेवरेट कंटेस्टेंट, और मुझे लगता है आप लोगों का भी वही है ना। ये देखो सोन, देखा क्या जवाब दिया है? ये देखो 400 प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद ना ऐसे जवाब रेडी हो रहते हैं। आप लोग के जो सवाल होते बड़े सिंपल थे, बट फनेस्ट मोमेंट फॉर यू सर। मुश्किल मोमेंट्स तो थे जैसे आपने बताया अबाउट जंपिंग, बट ऐसे फन वाले मोमेंट्स भी थे ना, कॉमेडिक मोमेंट्स जो इनके साथ रहे। डू यू रिमेंबर एनी वन ऑफ देम? वी वुड लव टू हियर। बहुत सारे थे। मुझे याद है कि कई बार बिल्डअप बड़ा होता था कि आज का जो टास्क है इतना मुश्किल है, अगर कुछ हो जाएगा, लेट जाना, बहुत ज़्यादा हमला हो सकता है। लेकिन हमारा जो है ना एक लेकिन बहुत है कि यार सब कुछ हो जाएगा, आप खाइए पिए ये कीजिए ऐश कीजिए, लेकिन ट्विस्ट, लेकिन उसके अंदर एक कुछ ना कुछ छिपा हुआ है, उस लेकिन में कुछ ना कुछ छिपा हुआ है। सो आई थिंक उस लेकिन में जब लोग ये शो देखना शुरू करेंगे वो भी कहीं ना कहीं ये बोलेंगे जरूर कि जिंदगी बड़ी कमाल की है। लेकिन आई लाइक इट। ऐसे ट्विस्ट हमारे साथ भी आज बहुत सारे होने वाले हैं। सो यू नो व्हाट वी गोना डू एक्चुअली राइट नाउ इज, आज बहुत सारे सर हमारे जो खूबसूरत मीडिया वाले भी आए हुए हैं। आपसे एक टास्क हम बाद में करवाएंगे पहले, लेकिन हम लोग आप अभी करना चाहेंगे या बाद में करना चाहेंगे? बाद में करेंगे, लेकिन हमारे जो मीडिया हैं इनको मैं कुछ नंबर्स बोलूंगा और इनसे हम टास्क करवाएंगे सर, ठीक है? सो यू बीन डूइंग दिस। नो, वील डू दैट लेटर विद सोनू सर। पहले हम लोग मीडिया के साथ टास्क करेंगे। ओके, सो गाइस हैव अ सीट फर्स्ट and we're going to make sure that they also get to experience जो आपने experience किया with Sonu sir as the big roadies boss. जो just have a seat if you can. अरे हाँ वो तो बाद में है ना, थोड़ा पहले मैं आप लोगों के साथ टास्क कराऊँ ना ऐसा थोड़ी ना, उसके बाद इमीडिएटली दूसरे इवेंट में नहीं। हाँ 100%। अच्छा मैं randomly 1 to 100 में टोकन नंबर 80, all you guys had tokens when you entered. Who's token number 80? Where? You. Come. 80. आइए ना।